Good evening, everyone. This is your friend Deepak Sethia. I'm also a law student. The challenge which I faced during my law schooling was very tough, as I had already studied my law books. But when I came near the concept of moot court, it was a very challenging task, and it was a very challenging task for a student who is a law scholar to prepare a moot court without how to apply that particular law in that particular hypothetical situation. This was not the concept faced by us only, but it was the concept faced by many of the scholars in US also. When we talk about the history of the moot court, it was on the 18th and 19th century when students used to face this problem. In 18th and 19th century, in England, the team of teachers developed an imaginary hypothetical situation so that the application of law could be learned. Now this concept flourished very high. मतलब इसका जो निर्माण था लॉ स्टूडेंट को अपने एप्लीकेशन नॉलेज अप्लाई करने का, वो बहुत जबरदस्त साबित हुआ. They were able to learn the application of law in that hypothetical situation. And this concept too flourished to India too in 18th century, where many of the law colleges later on adopted this concept so that the student can learn the application knowledge. Now the question might be coming in the minds of the law student that what about the lower courts where we can learn more better application of the law than practicing a moot court? Many of you will be saying that this is useless, right? But the thing is that no advocate who has established his practice by giving 7 or 8 years his life, or might be 10, might be 12, might be 5, will not give you his file immediately when you are in second, third year, until he is sure that you are aware of the facts of law, or you are aware how to use the courtroom procedure, because he has made that client to believe that he will make him to win the case. He don't want to lose the client, so he does not rely on you and give his file directly that you may go and proceed his case. So the biggest challenge was where to learn the concepts or application of law, the hypothetical situation. अब तो फिर जाए कहाँ जब अपना सीनियर ही आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आप फाइन नहीं देगा आपको, तो आप कहाँ जाकर उस एप्लीकेशन लैंग्वेज को समझे. तो ये जो मूट कोर्ट का कॉन्सेप्ट था, इट वाज द बेस्ट concept to learn the application of law. I want to make it clear that the court procedure and moot court drafting is really very different. So how it is useful? जब दोनों अलग है, कोर्ट में अलग सीखना पड़ेगा और मूट कोर्ट में अलग सीखना, मूट कोर्ट ड्राफ्टिंग अलग होगी. तो मैं कहना चाहूँगा कि एक तरह होता है, जैसे मान लीजिए पौधा जो होता है वो धीरे धीरे पेड़ बनता है. तो आप जब लॉ ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जो माइंड है वो एक कॉमन मैन की तरह सोच रहा है कि हाँ ऐसे होने से ऐसा हो जाएगा. ट्रायल एंड एरर अप्रोच ट्रायल एंड एरर अप्रोच पे बात कर रहे हैं. लेकिन जब आप एक प्रॉब्लम को मूट प्रॉब्लम में जब आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे और आप एक लीगल माइंड अप्लाई करेंगे, हो सकता है आप 1 बार गलत हो, 2 बार गलत हो, 3 बार गलत हो. घबराइए मत. हम इसके हर चीज को धीरे धीरे बारीकी में समझेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि कैसे कौन से सिचुएशन में कौन सा सेक्शन हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है. आपको नहीं आता है, हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे. तो बात यह है कि मूट कोड अगर सीख रहे हैं तो आप एक तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं कि अपना लीगल माइंड कैसे अप्लाई करें, जो कॉमन मैन की थिंकिंग से बिल्कुल अलग है. एक बहुत ही सिंपल सा लाइन है, लॉ इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस. अब मूट कोड क्या है? मूट कोड का सिंपली डेफिनेशन है इमेजिनरी कोड सो दैट द लॉ स्टूडेंट कैन लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड्स, एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड मेनी थिंग एल्स. तो अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स में, जो कि डिवाइडेड है. अब सबसे पहली बात है, मैं आपको पहली बार वीडियो लेक्चर दे रहा हूं तो इसके पार्ट्स में अब हम देखते हैं. सबसे पहला जो पार्ट होगा इसका सबसे पहले वाला जो पार्ट होगा वो है स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, जिसका हम ब्रीफिंग ले रहे हैं. हम बाद में इस टॉपिक को अलग से एक वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज, और फिर
समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट एडवांस एंड प्रेयर। ये 6 जो इसके पार्ट्स है बहुत ही क्रूशियल पार्ट्स है, और इनको बनाने में जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है वो वेरी करता है लॉ पर्सन टू पर्सन, हाउ ही अप्लाइज नॉलेज, क्योंकि लॉ इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस, मैं आपको पहले ही बोल रखा हूं। तो अब क्या होता है कि जब आप अप्लाई करें, हो सकता है कि आप सोच रहे हो आप इस तरीके से ले जा सकते हो। जैसे मैं आपको सिंपली एग्जांपल देता हूं कि हो सकता है मान लीजिए सिंपली केस आया एक मतलब कॉमन जनरल ऑफर का। हो सकता है लॉयर जो है, एक लॉयर सोच रहा है चलो इसको सेक्शन 9 में ले जाके सिंपली इसको कंपनसेशन दिला देते हैं, लेकिन हो सकता है उसी तरफ दूसरा लॉयर सोच रहा चलो आर्बिट्रेशन करा के दोनों पार्टी का मतलब मेरी क्लाइंट को ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो एक लॉयर जो अपने क्लाइंट का में सोच रहा है, एक लॉयर सोच रहा है इजी प्रोसेस में हो जाए, क्योंकि आर्बिट्रेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसे जो लॉयर्स की थिंकिंग वेरी करती है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ जुडिक्शन में, आपको ब्रीफ दे रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ जुडिक्शन क्या है, जिसको हम जो वर्ड जो जुडिक्शन वर्ड जो आया है वो आपका बन के आया वर्ड लोकस स्टैंडाई से। लोकस स्टैंडाई को जब हम ब्रेक करके पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं लोकस स्टैंडाई। व्हाट इज योर पावर टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट, मतलब आप कोर्ट को ये बताओगे इस स्टेटमेंट ऑफ जुडिक्शन के अंदर कि व्हाट इज the power of the courts, why the court has to hear your case, right? अब आप बताइए, मैं आपको सिंपली पूछता हूं कि आप कॉलेज में हैं, आपके एक फ्रेंड ने कहा कि भाई मेरा असाइनमेंट बना दे, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या आप उसका असाइनमेंट बनाओगे? 90 मुझे पता है आप ऊपर से कहोगे हाँ मैं बना दूंगा, लेकिन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, कि मैं खुद ओवरबर्डन हूं, मुझे खुद अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, लेक्चर्स लेने हैं, फिर घर जाके और थोड़े प्राइवेट बातें भी करनी है जो कि मैं आपको खुल के नहीं बता पाऊंगा इस लेक्चर में। तो जब आप भी इतना बर्डन नहीं लेना चाह रहे तो अपनी इंडियन जुडिशरी जो है वो ओवरबर्डन पहले से ही है, क्योंकि देयर आर शॉर्टेज ऑफ कोर्ट्स, जजेस एंड एवरीवन इन द प्रोसेस, बिकॉज नौकरियां निकलती नहीं है और जजेस अपॉइंट होते नहीं है, तो अब कोर्ट भी ओवरबर्डन है। जब आप कोर्ट को बताओगे स्टेटमेंट ऑफ जुडिक्शन के द्वारा कि इस सेक्शन या इस आर्टिकल के अंदर आपको मुझे सुनना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी बात करता है हाई कोर्ट में, सॉरी हाई सुप्रीम कोर्ट में आपके रिट और पीआईएल्स, रिट जो 5 टाइप की है वो, और पीआईएल्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो आपका सुप्रीम कोर्ट में बात करता है। सिमिलरली आर्टिकल 226 आपका हाई कोर्ट में बात करता है, वही अथॉरिटी हाई कोर्ट को मिल रही है आर्टिकल 226 में, और वही अथॉरिटी 32 में सुप्रीम कोर्ट। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन, रिट का एप्लीकेशन, फिर आपका पीआईएल का एप्लीकेशन मैं आपको आगे आने लेक्चर्स में बताऊंगा। ये हो गया हमारा जुडिक्शन पे बात। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या है। चलिए आप स्टेटमेंट को वर्ड को हटाइए, फैक्ट्स क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज फैक्ट्स। इसका डेफिनेशन आपको इंडियन एविडेंस में मिल जाएगा, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 में आपको इसका वो मिल जाएगा फैक्ट्स के बारे में। अब जनरली जब हम बात करते हैं फैक्ट्स की, जो जनरल डेफिनेशन है फैक्ट्स की, ये फैक्ट्स मैं आपको हिंदी में सिंपली समझाता हूं कैसे फैक्ट्स क्या होते हैं। मान लीजिए आप अपने मोहल्ले से गुजर रहे हैं और आपने सुना कि आपके पड़ोसी के घर में हल्ला चिल्ला हो रहा है, और आप मंदिर जैसे आपने फील किया कि वहां लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, वहां का बिहेवियर जो है, आपको लगा कि वो मतलब गुस्से वाला, नॉर्मली फ्रेंडली नेचर में नहीं है, या फिर आपने देखा कि आप स्मेल कर रहे हैं, कुछ अलग से स्मेल आ रही है, कि फिर आप गए स्मेल को इनहेल करते करते आप पहुंचे और आपने जब ग्राउंड खोदा आपने देखना डेड बॉडी बरीड है, ये भी एक फैक्ट है। फैक्ट वो चीज है जो प्रिसीड बाय सेंसेस हो सकती है, चाहे आपको 5 सेंस ऑर्गन किसी के भी द्वारा, आप देख सकते हैं, आप स्मेल कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। जब आपका 5 सेंसेस के द्वारा जो आपको प्रिसीव करते हैं वो फैक्ट्स है। और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट्स, इन द केस। ये जो फैक्ट्स जो है वो एक लॉयर को केस जीतने पर जिता भी सकता है, हरा भी सकता है, भले ही ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्यों ना हो। क्योंकि अब क्या होता है कि आप जब फैक्ट्स को बार बार पढ़ते हो, 10 बार 15 बार जब आप पढ़ते हो तो आपको अलग अलग चीजें पता चलती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक लाइन से
ए जो है, शी वाज अ हॉस्टलर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड शी हैड अ लॉन्ग टर्म लिविंग रिलेशनशिप विद बी एंड हर पेरेंट्स वर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट। नॉर्मल जो आदमी होगा, जो लेमन्स लैंग्वेज में पढ़ेगा, तो यही समझ लिया कि वो हॉस्टल में रहती थी, उसका बॉयफ्रेंड था और लिविंग रिलेशनशिप में था और घर वालों को पता नहीं था। लेकिन जब लॉयर अप्लाई करेगा अपना माइंड, तो हो सकता है कि वो सेक्शन 8 लगाए, प्रीवियस कंडक्ट के बारे में बात करें। चलो, मतलब वो बता रहा है कि वो उसके जो घर से जो रिलेशंस थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि वो अपने घर वालों को बता पाए अपने लिविंग रिलेशन के बारे में, एंड घर वाले अवेयर नहीं थे। कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये बात थी कि वो, उसके मन में कोई खोट थी कि वो बात कर रहा। अब हम ये चीज देख रहे हैं, ये तो चलिए हमने मान लीजिए लड़की ने केस किया कि लिविंग रिलेशनशिप था। अब हम बॉय की तरफ से देखते हैं क्या होता है। बॉय की तरफ से जब हम देखते हैं तो हो सकता है कि बॉय की तरफ से मान लीजिए हमें डिफेंस देना है। जब हम ये फैक्ट को एनालाइज करते हैं तो हम बॉय की तरफ से कह सकते हैं, हो सकता है द ओनली मोटिव ऑफ द लेडी वाज टू फुलफिल हर सेक्सुअल डिजायर्स, नॉट टू गिव अ कमिटमेंट टू द डिफेंडेंट और द डिफेंडेंट हु वाज द बॉय। तो देखिए, यही फैक्ट जब हम लीगल लैंग्वेज अप्लाई कर रहे हैं, लीगल नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, तो एक ही फैक्ट से हमें दो बात पता चल के आई, जो कि दोनों पेटिशनर और रिस्पोंडेंट साइड में दोनों साबित हुई। तो फैक्ट्स का इंपॉर्टेंस ये है। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स का, स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज, जिसको हम फिनोमिना है फैक्ट इन इशू 2। पहले जब क्या होता था, फैक्ट और फैक्ट इन इशू को अलग नहीं माना गया था। तो एक जस्टिस थे, जस्टिस मुनीर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैक्ट और फैक्ट इन इशू को अलग करके बताया। फैक्ट तो आप समझ गए फैक्ट क्या होता है, और फैक्ट इन इशू क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इशू भी। अब मान लीजिए एक पर्सन है, बी उसके घर में गया। बी जब उसके घर में गया तो सी ने देखा। सी ने जब देखा तो सी ने देखा कि बी उसके घर में जा रहा है, ये घर में बैठा। जब सी निकला तो बी के एक ही चिल्लाने की आवाज आई और बी दौड़ के भागा। और जब सी उसके घर में गया तो सी ने देखा कि एक का मर्डर हुआ है, ये डेड है। तो फैक्ट इन इशू क्या है, ए जो ए एलेज कर रहा है, या ए तो एलेज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका मर्डर हो गया है, और ए के रिलेटिव एलेज करेंगे ए का मर्डर बी ने किया, क्योंकि सी इज द आई विटनेस। अब बी यहाँ पे डिनाई कर रहा है, मैंने मर्डर नहीं किया, कि बी बोल रहा है कि मर्डर पहले ही हुआ था, मैं तो उसके घर में गया था, तो मैं डर के मारे भागा हूं। तो जब एक ही फैक्ट पे जब दो पार्टी डिनाई करती है तो हम उसे कहते हैं फैक्ट इन इशू। इसीलिए तो अगर डिनाई ना करे और कोई इशू ही ना हो तब तो एडवोकेसी का खेल ही खत्म। तो फैक्ट इन इशू आपको समझ में आ गया, और स्टेटमेंट ऑफ इशू वही कहते हैं हम। अब समरी ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होता है? समरी ऑफ आर्गुमेंट की जब हम बात करते हैं तो समरी मतलब है कि ब्रीफ देते हैं, हम अपना प्लीडिंग्स की ब्रीफ दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम समरी में बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक इश्यू उठाया, वेदर B has murdered A और नॉट। हम यहाँ पे नॉट लगा रहे अपना स्टेटमेंट, और जहाँ पे हम डाउट में है कि एक पार्टी एग्री कर रही है कि मर्डर हुआ है, दूसरी पार्टी एग्री नहीं कर रही है मर्डर हुआ है, हम इस बात पे बात करें। अब होता है कि मान लीजिए हम जाते हैं कि हम डिफेंस मतलब क्या देख रहे हैं। मान लीजिए हम अपना जो लॉ का नॉलेज है वो आपको अभी नहीं बताऊंगा इंट्रोडक्शन में, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि पार्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जब लेटर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको देखेंगे कि लॉ का एप्लीकेशन कैसे चेंज होता है, कैसे जब आप कान पे मारते हो तो 319 लगता है, वही आप कान का पर्दा फट जाए तो 320 हो जाते धारा। तो कैसे लॉ का जो सेक्शन है वो चेंज होते हैं, कैसे लॉ के सेक्शंस लगते हैं, हम वो देखेंगे। और फिर हम उसका लीगल एप्लीकेशन देखेंगे कि लीगल एप्लीकेशन क्या होगा लॉ के सेक्शंस के। तो समरी ऑफ आर्गुमेंट में इतना जान लीजिए कि अपनी प्लीडिंग की ब्रीफ दे रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं मूट मेमोरियल बना रहे हो, ब्रीफ इसलिए बनाते हैं, और ये पार्ट सबसे बेस्ट लगता है मुझे अपने, जब मैं अपने लॉ कॉलेज में अभी भी हूँ, जब भी मैं मूट में, मैं 4 नेशनल कर चुका हूँ, सॉरी मैं बता रहा हूँ आपको, और जब करते हो और मुझे ये पार्ट बेस्ट लगता है क्योंकि इससे हमें क्रक्स मिल जाता है कि हमें अपना एडवांस आर्गुमेंट कैसे प्लीड करना है या कहाँ से फ्रेम करना है। फ्रेम करना है वो सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क है। अब आते हैं आर्गुमेंट्स एडवांस्ड। आर्गुमेंट्स एडवांस में कुछ नहीं है कि आप जो समरी में लिखा उसी को आप ब्रीफ में बताते हो और आप केस देते हो कि इस केस में ऐसा कहा गया। अब ये जो आप केस रिफर करते हैं, ये आपका वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह सेम चलते हैं।
क्योंकि वहां भी केस रिफर किया जाता है, ठीक है। तो जब आप ये केस रिफर कर रहे हो तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था जो लॉ से अडॉप्ट हुआ था वो था आपका ओबिटर डिक्टा एंड रेशियो डिसिडेंडी। जजमेंट के दो पार्ट होते हैं, ओबिटर डिक्टा और रेशियो डिसिडेंडी। ओबिटर डिक्टा मतलब होता है कि क्रूशियल जजमेंट आ गया किसी केस पर, और रेशियो डिसिडेंडी मतलब अगर वो किसी अपर कोर्ट से, आज मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फॉलो करना और हाई कोर्ट से कोई जजमेंट आ गया है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी लॉयर उस जजमेंट का रेफरेंस देकर अपना केस में बता सकता है कि इस केस में ये कहा गया था, और आप, मेरे फैक्ट्स भी ऐसे ही है, मेरे फैक्ट्स कुछ चेंज है, आप इसको डिनाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, उनमें लड़ाई हो गई तो दोनों बात तू मार के दिखा, सामने बोला तू मार के दिखा, तो क्या हुआ, जब दोनों की लड़ाई हो रही थी, एक ने धक्का दिया तो बंदा रोड पे गिरते कार आकर तो कुचल के चली गई। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा स्टूडेंट उठता है कि नेग्लिजेंट एक्ट है या मर्डर है या कुछ और, ठीक है। जब हम इस पे बात कर रहे थे तो अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अब इसका क्रक्स निकाला गया कि चलो प्रोवोकेशन में था तो प्रोवोकेशन में था तो जब प्रोवोक हुआ तो मतलब अब हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस, जिसमें सीधा सीधे एक पॉइंट कहा गया था कि प्रोवोकेशन जो है वो आपका मर्डर का अंडर नहीं आएगा, वो आ जाएगा आपका सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सडन प्रोवोकेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ पावर बाय ऑफिशियल, जो आपका 299 में आगे का पॉइंट है। मैं आपको समझा रहा हूं कि आगे का जो पॉइंट है एडवांस आर्गुमेंट में आपको केस का रेफरेंस देना है, जिस केस में कहा गया है। जैसे अब हम करते हैं कि सर आपने तो इसको इसी आंसर में 10 नंबर दिए, सेम टू सेम मैंने भी इसी से देख के लिखा, तो आप इसमें मुझे 9 क्यों दे रहे हो, उसे 10 क्यों दे रहे हो। सिमिलरली जब हम कोर्ट में केस रिफर करते हैं तो हम भी बोलते हैं कि इस केस में ये जजमेंट आया तो मेरे केस में सेम फैक्ट्स या सेम फैक्ट्स थोड़े चेंज होने का। प्रोवोकेशन बहुत तरीके से हो सकता है, मान लीजिए मैंने आपको अभी रोड का एग्जांपल दिया, प्रोवोकेशन ऐसे भी हो सकता है कि दो दोस्त के बीच में धक्का मुक्की हो रही, दोनों उतर रहे थे सीढ़ियों से, एक ने धक्का मारा, दूसरा गिर गया, हो सकता है उसका मिडुंगला अपना अंगूठा इंजर्ड हुआ और उसकी मां डेथ हो जाती है। अब जो कॉमन आदमी होगा वो सोचेगा कि मर्डर है, कि मैंने इसको मार दिया। लेकिन जो लीगल माइंड अप्लाई होगा इसमें वो होगा आपका कि लीगल माइंड जो अप्लाई होगा आपका वो होगा कि नहीं मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। जो कंडीशन इसकी सबसे पहले फुलफिल हो रही है सडन प्रोवोकेशन, जो कि आपका आ रहा है केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसने रुस्तम मूवी देखी होगी उससे रिलेट करता है। सडन प्रोवोकेशन में जो एक्ट आया वो आपका हो सकता है कि ये आप केस रिफर कर रहे हो, इस केस में भी ऐसा हुआ, और सडन प्रोवोकेशन आपका मर्डर का एक्सेप्शन है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग। अब बहुत सारे लोग, अब मैं आपका इस एक वर्ड का मीनिंग क्लियर करते तो होमोसाइड क्या होता है, अगर ये मैं इस लेक्चर में क्लियर करने लगे तो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको इसके बेसिक्स क्लियर करा और मूट कोड के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। अब हम आ गए एडवांस आर्गुमेंट में। एडवांस आर्गुमेंट में आप वो भी बातें कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का आता है क्वेश्चन कि क्या एडवांस आर्गुमेंट में हम जजेस के रेफरेंस, हाँ आप जरूर लिख सकते हो कि जजमेंट किसी जज ने क्या कमेंट किया है, हाई कोर्ट के जज में जो जजमेंट क्लॉज है जिसमें कौन से जज ने क्या कमेंट किया वो भी आप बता सकते हो एनेक्सर के रूप में, ये आप बता सकते हो। एडवांस आर्गुमेंट में वो सारी बातें आप जो कहोगे, जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करेगी, वो आप सब आपको उसको कहना हो, आपको बताना होगा रिटर्न आर्गुमेंट में, जो आपके मेमोरियल्स फ्रेम होते हैं। अब दूसरी बात है, और अब जो आता है ये पार्ट, भले ही मेमोरियल का लास्ट पार्ट हो, लेकिन इट इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द मेमोरी। प्रेयर, आपको आपने जुडिक्शन बता दिया, लेकिन कोर्ट आपसे पूछेगी आप चाहते क्या, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द कोर्ट, आप कोर्ट के आगे खड़े क्यों और कोर्ट आपको सुने क्यों, आपकी प्रेयर क्या है उस पर्टिकुलर केस में। तो आप अपनी प्रेयर उस हिसाब से बनाओगे, व्हाट टू डिमांड फ्रॉम द कोर्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सामने वाले ने एलिगेशन लगाया है मर्डर का, तो आप बोलेंगे कि द accused should not be convicted of the murder, कि वो मर्डर नहीं किया है, वो आपकी प्रेयर है। या आप कुछ और ऑर्डर मांग रहे हो कि इस कोर्ट या और कोई एलिगेशन लगाया तो उसको आप खारिज करा रहे हो पेटिशनर साइड से, अगर आप प्रेयर मतलब मेमोरियल बना रहे हो तो आप उसको खारिज कराओगे। लेकिन अब एक लास्ट में जो लाइन आती है, जो आप कोर्ट से ये प्रे करते हो, चलो हमने तो सारी बातें कह दी अपनी तरफ से, लेकिन अगर हमारे से कुछ मिस हो रहा है तो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ मिस हो रहा है उनसे, तो बात करते हैं हम, पहले बात करते हैं कि आप
टू पास एनी ऑर्डर, जो लाइन लिखी जाती है उसको आप नोट कर सकते हैं। तो पहली बात है जो पास, टू पास एनी अदर ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। मतलब आप अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जस्टिस के हिसाब से वो चीज सही है कि हाँ किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो, कि आप ऐसा भी कोई ऑर्डर पास कर सकते हो जिससे किसी का जस्टिस हो सामने वाले के साथ। इक्विटी वर्ड का मतलब क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। आप लिख तो दिए हमने, मैं यहाँ पे जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि वो वर्ड को रटे नहीं, वो मतलब समझ के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लॉ है, लॉ का फील्ड में अगर आपने मतलब समझ जाता कि लॉ की स्टडी बहुत ईजी, अगर आप रट रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को मत देखिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा कि मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो पहला बात इक्विटी क्या है कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, 5,000 रुपए हैं, आप देख रहे हैं एक आदमी को 5,000 रुपए की जरूरत है क्योंकि उसका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको पैसा 2 लोगों में बांटना है। तो हो सकता है अगर आप इक्वली बोल रहे हो, इक्वली और इक्विटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इक्वली क्या होगा कि आप 2,500 बांट देंगे, लेकिन इक्विटी में क्या होगा, आप देखेंगे उसको सबसे ज्यादा जरूरत उस चीज की किसको है, यह जो आदमी है जो हॉस्पिटल में एडमिट है उसके परिवार वालों को, या दूसरी पार्टी को जिसको आपको देना है 5,000 रुपए। इसको इतनी जरूरत नहीं है लेकिन इसको उसकी ज्यादा जरूरत है, तो आप इक्विटी के हिसाब से इसको दे दोगे, इक्विटी के हिसाब से इसको पास कर दोगे ऑर्डर। तो इक्विटी वर्ड का मतलब गुड कंसाइंस। अब हमने बचपन में एक वर्ड पढ़ा था कंसाइंस बोलकर, जो अंदर से जो बात करें कि हाँ ये नेचुरल लॉ का भी कि कंसाइंस की बात करें। कंसाइंस क्या होता है? कंसाइंस हम कहते हैं कि मान लीजिए आप कंसाइंस की बात करें, कंसाइंस मतलब जो देखने से लग रहा है सही है, गुड कंसाइंस, कोर्ट को लगे नहीं ये गुड बिहेवियर के लिए ये कंसाइंस होना चाहिए, मतलब हमने इस गुड कंसाइंस में इस ऑर्डर को इस पर्सन के फेवर में पास करें। हमने अब इसके बेसिक्स प्रिंसिपल आप फॉलो करें कि इसके पार्ट्स क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि इसके पार्ट ये है कि लास्ट में हम प्रेयर बात कर रहे हैं। अब प्रेयर कितनी बड़ी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द प्रेयर, कि प्रेयर की कोई लेंथ नहीं है, प्रेयर इतना सही होना चाहिए कि जो बात आप कहना चाह रहे हो कोर्ट न्यायालय को समझ में आ जाए कि आप ये ऑर्डर मांग रहे हैं। मठाधीश नहीं बनना है कि मुझे ये ऑर्डर चाहिए ही चाहिए। मठाधीश क्यों नहीं बनना है वहां पर, क्योंकि आपने जब कह दिया टू पास एनी अदर ऑर्डर विच इज डीम्ड फिट इंटरेस्ट इन जस्टिस, इक्विटी और गुड, कोर्ट जो है आपने कोर्ट को पूरा डिस्क्रिप्शन उसके पास है। जब आप ये लाइन लिख देते हो सकता है जो आप ऑर्डर डिमांड कर रहे हो अपने केस में, वो आपको ऑर्डर ना दे, दूसरी पार्टी के फेवर में ऑर्डर दे। जब ये लाइन लिखते ही वकील जो है उस पोस्ट जो है वो जो जज का पोस्ट है उसको एक अपनी इज्जत प्रदान कर रहा है कि ये न्यायालय को मैं ये संपूर्ण निरीक्षण देता हूं भले ही होते हुए वकील, कि आप जो हो सकता है आपको लगे कि ये इक्विटी में मेरे अगर आप फेवर में आप ऑर्डर पास कर रहे हैं तो ये चीज गलत है, आप उसके फेवर में पास कर सकते हो, या उसके फेवर आप ऑपोजिट पार्टी के फेवर में कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं तो आप इसके फेवर में पास करो। अब एक बात बताओ, मूट कोर्ट की जो सबसे बेस्ट बात है इसमें आप दोनों पार्टी की तरफ से मेमोरियल बना रहे हो, क्योंकि आप और कुछ क्या होता है कि जब हम पेटिशनर साइड से बनाते चले जाते हैं या तो हम पेटिशनर साइड से बनाते चलते हम उसी हिसाब से सोचते चले जाते हैं, और अब एंड तक पहुंचने के बाद क्या होता है जब हम रेस्पोंडेंट पे पहुंचते हैं तो हमारा दिमाग अचानक से काम करना बंद कर देता है, हमने तो इसको फंसा ही दिया, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी वैसी हो जाती है कि हम इसको बचा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम रिसर्च कर रहे थे जो पेटिशनर साइड से फंसाने के लिए कर रहे थे कि हमें उसे जेल भिजवाना था या उसको कन्विक्ट कराना था, लेकिन जब हम रेस्पोंडेंट साइड से बनाने लगे शुरू में क्या होता है कि हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि हम कैसे उसको डिफेंड करें। तो जब मेरा यही सजेशन है, जब आप ये पेटिशनर साइड बना रहे हो तो आप डिफेंस पहले ही सोच के रखिए, क्योंकि अगर आप एक साइड बना रहे हो दूसरा साइड बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू फॉर अ लॉयर, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि लॉ विधि शास्त्र ऐसा सागर है जिसकी कोई गहराई नहीं है, जिसका कोई लंबाई नहीं है। आप जितना डूबते चले जाओगे पढ़ते चले जाओगे, क्योंकि 10 साल प्रैक्टिस करने वाला भी एडवोकेट को बहुत कुछ सीखना बाकी रहता है, और जो शुरू में गया उसे भी बहुत कुछ सीखना बाकी रहता है। तो विधि शास्त्र का जो सागर है वो अपने आप में बहुत गहरा है, उसकी बहुत ब्रांचेस है। तो अगर आप प्रेयर का कोई लेंथ नहीं है, प्रेयर इतनी होनी चाहिए जो आपकी बात समझ में आ जाए और
अपनी बात कोर्ट तक रख पाए और कोर्ट से आप अप्रेयर कर सकते हो, मुझे ये चीज चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बहुतों के दिमाग में बात है ज्यूरिसडिक्शन कैसे बनाए, क्या करे ज्यूरिसडिक्शन में, कैसे करे, कितना करे, क्या ज्यूरिसडिक्शन होगी मेरा कोर्ट। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं क्षमा चाहूंगा न्यायपालिका लोगों से, लेकिन एक बात जो मेरे गॉडफादर कहे थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, मैं कहता हूं उनसे मैं बहुत प्रेरित हुआ हूं, जेठमलानी साहब, राम जेठमलानी साहब, वो कहते थे जजेस आर द पपेट ऑफ लॉयर, मतलब वकील जैसे नचाना चाहे जज को नचा सकते हैं। मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैं ये बात अपने वीडियो में कह रहा हूं, और ये बात वाकई में सच है, क्योंकि आप ऐसे नहीं है कि आप बिना लॉ के पॉइंट से आप उसे नचा पाओ। आप अगर अपने लॉ में देख रहे हो, आप इसको इस तरफ से भी घुमा सकते हो, उस पॉइंट को इस तरफ से भी घुमा, जैसे आपके क्लाइंट के फेवर में। तो मूट कोर्ट ज्यादा कुछ नहीं है, ये इमेजिनरी कोर्ट है जो लॉ स्टूडेंट को एप्लीकेशन ऑफ लॉ सिखाता है और कुछ नहीं। हाँ मैं कहता हूँ ये बेहद जरूरी है, 10-20 पन्नों का असाइनमेंट घिसने से तो अच्छा अगर आप एक मूट मेमोरियल या कॉज ऑफ एक्शन या स्टेटमेंट ऑफ जुडिक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बना पा रहे तो बहुत अच्छा। 10 असाइनमेंट के बराबर अगर आपने एक मूट कोर्ट बना लिया तो आपने एक लॉ की मतलब लॉ का एप्लीकेशन करना सीख लिया आपने। हाँ घबराइएगा मत, क्योंकि शुरू में आप नहीं पहुंच पाओगे विकल्प पर नहीं पहुंच पाओगे कि जुडिक्शन कैसे बनाए, फैक्ट्स को कैसे एनालाइज करें। ये एक रात का प्रोसेस नहीं कि रात में सोए, वीडियो देखकर सुबह उठे और आप मूट कोर्ट में एक्सपर्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि जब मैंने भी बनाना सीखा तो मैंने मैक्सिमम कम से कम 15 मेमोरियल देखे, 15 तरीके से सोचा कि इसको कैसे केस को ले जाया जा सकता है। ये धीरे धीरे प्रोसेस बिल्ड होगा उन लोगों के लिए जो लॉ कॉलेजेस में है। तो मैं इंट्रोडक्टरी सेक्शन में इतना ही कहना चाहूंगा कि मूट कोर्ट जो है इट इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू डेवलप द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब मेरे पास मेरे बहुत सारे जूनियर्स आते हैं कि भैया इसका जुडिक्शन निकाल दो, कैसे होगा, ये एक्सपेक्ट्स को बता दो, इसको कैसे देखेंगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक भी आते हैं कि भैया इसका कैसे होगा। मैं उनसे ये कहता हूं कि आप एडवोकेट हो, यू कैन प्लीड दैट पॉइंट इन द मेमोरियल जो आप सोच सकते हो नहीं बड़ा से बड़ा मथादिस आ जाए, मैं इस पॉइंट को साबित करके लाऊंगा। क्योंकि लॉ में कोई पॉइंट गलत नहीं होता, ये देखते हैं आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपका एप्लीकेशन ऑफ लॉ कितना तगड़ा है या कितना तेज है कि आप उस बात को कोर्ट ऑफ लॉ में साबित कर पा रहे हैं। भले से बड़ा मथादिस आ गया भाई मैं तो इस सेक्शन में जुडिक्शन ले जा रहा हूं, तुम इस सेक्शन में ले जा रहे हो, तुम गलत। तो अगर आप जो लोग आपको आके कहे कि यार ये तो काम का नहीं है, ये फर्जी बैठ के बात कर रहा है, मूट कोर्ट से कुछ नहीं होगा, उनको देख के आप यही सोचिएगा चलो आज तो मिला कोई डसने वाला, वो तो कुछ करेंगे नहीं ना आपको कुछ करने देंगे। आप मन ही मन मुस्कुराइएगा ऐसे लोग से मिलकर और अपने कलीग को मैसेज किया आज मिल गया एक नाम जिसका काम है खाली, अरे तू तो मूट कोर्ट कर रहा है, तूने 8,000 रुपए मूट कोर्ट में इन्वेस्ट कर दिए, क्या होगा, किसको फंसा लिया यार, किसको और मूट कोर्ट पार्टनर बना लिया, क्या कर लिया, तुम नेशनल जा रहे हो यार, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पैसा बर्बाद होगा, मत जाओ। ऐसे लोग जब मिले तो आप अपने जो मूट कोर्ट कलीग्स है या कलीग को मैसेज आज एक नाग मिल गया जिसका काम यही था, और उनको ये बताइए कि ये जो इमेजिनरी कोर्ट, ऐसे लोग का मिलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम कार्ड्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि हार्ट 13 पीस होते हैं, सीढ़ी 13 होती है, तीसरे वाले 13 होते हैं, लेकिन जो इक्का होता है, इक्का बम बोलते हैं, उसका शेप भी ऐसे होता है, वो डसने वाले होते हैं। ये वही लोग होते हैं इक्का वाले जो आपको डसते हैं कि तूने किसी और को तो नहीं बोल दिया मूट कोर्ट करने के लिए, क्या टाइम बर्बाद कर रहे थे, चल। लेकिन मैं यही कहूंगा मूट कोर्ट इज द बेस्ट आर्ट इन योर लॉ स्कूल टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं एंड करता हूं। बाकी जो नेक्स्ट है मैं आपको इसके आगे का जो जुडिक्शन है वो हम आपको जुडिक्शन से स्टार्ट करेंगे, स्टेट ऑफ जुडिक्शन को कैसे बनाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे कि जुडिक्शन में क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को एनालाइज नहीं करेंगे और हम कुछ भी जुडिक्शन डाल रहे हो सही है, ये गलत। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर को एनालाइज करके जुडिक्शन बना रहे हो और कोई आपसे कह रहा है गलत है तो बनने दो या मठाधीश, हम गलत को सही साबित करेंगे क्योंकि हम भैया वकील है, कील नहीं। तो मैं इस लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ। मैं आपके फीडबैक्स और कमेंट चाहूंगा और मेरा नंबर मैं आपको यहीं पे वीडियो में बोल रहा हूँ 967901
222431। तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और आपका व्हाट्सएप मैसेजेस और आपके कमेंट्स जो रहेंगे वो मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा और मुझे इंस्पायर करता रहेगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आपसे अलविदा कहना, अभी फिलहाल के लिए अलविदा कहना चाहता हूँ और धन्यवाद। मैं आशा करूंगा कि आपको और समझ में, और आपके पास कोई पॉइंट्स हैं तो प्लीज आप मुझे पेश कीजिए ताकि मैं उसके और ऊपर रिसर्च करके और आपको और बेहतरीन रिजल्ट दे पाऊँ। सेव मारो।